How are you all? I hope you all are doing very good. Welcome to the channel with the new chapter of class 4 science, that is chapter number 4 only, about reproduction in animals. So students, what is reproduction? It is a life process by which a living organism produces of their own kind. Alright, and every living organism can reproduce, whether it is a plant, animal or human being. In this session, we will learn about the reproduction in animals, and also we will learn about the animals that lay eggs for their babies to be hatched out. Alright, so first of all, they have asked you to tick the animals that lay eggs. यहाँ पे कुछ animals के pictures हमें given है. हमें उन animals के pictures पर tick करना है जो eggs lay करते हैं. Alright, so first picture is of this, which is a hen, and hen lays eggs. So we will tick it correct. Then again, what is it? This is a duck, or yes, it is a kind of duck only. And duck is also a bird which lays eggs. Cat do not lay eggs because cat क्या करती है? Cat अपने young ones को directly birth देती है. So we will not take it correct. Instead, we can mark it cross. Cow also do not lay eggs, right? Snake lays eggs. Elephant do not lay eggs. Frog lays eggs. And lion also do not lay egg. Alright? Chala. So all living things take birth, grow, get old and die. They also produce young ones like themselves. And in order to keep life continuous on the earth, each living being has to leave behind one of its own kind. The process by which the living beings produce their young ones of their own kind is called reproduction. Life cannot exist on the earth if living things did not reproduce. What they're saying is students कि सभी living things क्या करते हैं? Birth लेते हैं, grow करते हैं, old हो जाते हैं and eventually they die. ठीक है? And अपने इस लाइफ टाइम के दौरान हर एक living being अपने young ones को भी produce करता है which look like themselves only. Alright? So actual में लाइफ को अर्थ पे continuous रखने के लिए हर एक living being को अपने जैसी generation को पीछे छोड़ना पड़ता है. And the process, and वही process जहाँ पे एक living organism अपने young ones को produce करता है which are of their own kind. That life process is called reproduction. Alright? Life cannot exist on the earth. अगर living things reproduce नहीं कर पाते तो earth पे life exist नहीं करती. ठीक है? So reproduction in animals. So animals reproduce in many ways. Animals जो हैं different ways में reproduce करते हैं. The birds lays eggs from which the chicks come out. Birds क्या करती है? Birds eggs lay करती हैं जिनमें से इनके chicks जो है after some time बाहर hatch होकर आते हैं. Similarly, a cat produces kitten. एक cat kitten produce करती है. Dog produces a puppy. Dog puppy produce करते हैं. Animals like lion and humans. Lion and human जैसे जो animals हैं वो अपने young ones को birth देते हैं. So basically the animals which lay eggs are called oviparous. वो animals जो eggs lay करते हैं अपने babies के लिए they are called oviparous. And the animals that give birth to young ones are called viviparous. And वो animals जो directly अपने young ones को birth देते हैं they are called viviparous. These animals, and ये animals जो हैं different methods के through reproduce करते हैं. You can see in the picture, this is a deer with this baby known as fawn. Then sheep के baby को कहा जाता है lamb. A lion baby is known as cow. Alright? So first of all, the animals which give birth to their young ones. वो animals जो अपने young ones को birth देते हैं. Alright? And also produce milk to feed them. And उसके साथ साथ उनको यानी कि अपने babies को feed करने के लिए milk भी produce करते हैं. They are called mammals. Example, cow, goat, tiger, etc. All of these are the mammals. Students, mammals take good care. Mammals अपने young ones की अच्छी care करते हैं. Actual में they feed them, उन्हें feed करते हैं, clean करते हैं, उन्हें safe रखते हैं. Until they learn to look after themselves. कब तक उन्हें safe रखते हैं? जब तक वो अपनी खुद की care करना नहीं सीख जाते. Among the aquatic animals, अगर aquatic animals की बात करी जाए तो aquatic animal में whales and dolphins अपने young ones को directly birth देती हैं. Alright? And bat एक अकेला ऐसा mammal है which can fly. Next we have animals that lay eggs. अब उन animals की बात करते हैं जो eggs lay करते हैं. So these are the animals which give birth to their babies, are the sheep, goat, monkey, dog, cow, etc.
एंड ये वो एनिमल्स हैं जो एग्स ले करते हैं, दैट इज लाइक फिश, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्नेक, पिजन एक्सेट्रा. ऑलराइट. So fishes, insect, birds, what they do? They reproduce their babies. ये अपने babies को reproduce करते हैं by laying eggs. Some young birds that come out after hatching look like their parent animals. कुछ ऐसे young birds हैं जो अपने eggs में से hatch होने के बाद जब बाहर आते हैं बिल्कुल अपने parent animals की तरह दिखते हैं. Some look very different at birth. कुछ ऐसे हैं जो birth टाइम पे बहुत different दिखते हैं. But as they grow, लेकिन जैसे जैसे वो grow करते हैं तो वो अपने parents की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं after some time. Amazing fact, what is that? That whale and dolphin. Whales and dolphins क्या है? They are mammals. ये mammals हैं. Still they live in the water only. Alright. Next we will talk about the birds. Birds क्या है? Birds make nest to lay eggs. We all know birds क्या करती है? Nest बनाती है अपने eggs को lay करने के लिए. And वो जो nest होता है वो उनके eggs को and baby birds को safe रखते हैं. A bird's egg contains a hard outer shell to protect the chick growing inside. What they saying कि एक bird का जो egg होता है स्टूडेंट, उसमें एक hard outer shell होती है जो अंदर जो growing chick है उसको अंदर सेफ रखती है. After the eggs are laid, उसके बाद जब eggs lay कर दिए जाते हैं, one of the parent bird, कोई भी एक parent bird usually जो mother bird होती है वो usually क्या करती है उन eggs के ऊपर बैठती है उन eggs को warm रखने के लिए. And this is called incubation. इसे कहा जाता है incubation process. Alright? The embryo or the growing chick lies in the yellow part of the egg. Actual में जो embryo है, ये जो growing chick है, baby hen जो है, ठीक है, वो या baby bird जो है, वो कहाँ रहती है? Egg के yellowish वाले part के अंदर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? Yolk. The embryo feeds on the yolk. Embryo उसी yolk के ऊपर feed करता है, जैसे जैसे वो grow करेगा. एंड द वॉटरी वाइट पार्ट, एंड उसके बाहर जो वॉटरी वाइट वाला पार्ट होता है उसे आप क्या बोलते हो? एल्ब्यूमिन. एंड एल्ब्यूमिन का काम है टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो. द एयर सैक कंटेन एयर विच द डेवलपिंग चिक ब्रीज इन व्हाइल इट इज इनसाइड द एग. उसके अलावा उसमें एक एयर सैक भी प्रेजेंट होता है जिसमें एयर होती है एंड उसी एयर का वो डेवलपिंग चिक यूज करता है अपने ब्रीदिंग के लिए व्हाइल इट इज इनसाइड द एग. You can see this is the structure of a bird's egg. ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, this is the outer shell. ठीक है, and अंदर जो है ये वाला पार्ट, this is called what? This is known as air sac. फिर अंदर ये लिक्विड वाला पार्ट जो होगा इसे आप एल्ब्यूमिन कहोगे and this yellowish part is known as yolk. Alright? चा. Now how do eggs hatch? What they're saying कि कैसे eggs hatch करते हैं? So ना birds embryo uses an egg tooth. Actual में birds का जो embryo वाला part है वो egg tooth का use करता है उन shells को cut करने के लिए from the inside. Actual में egg tooth क्या है? It is a small sharp temporary structure. ये एक छोटा सा sharp और temporary structure होता है. The shell is thinned and weakened. जैसे जैसे अंदर जो growing embryo है वो उस egg shell के अंदर से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है अपने बोन्स फॉर्मेशन के लिए, तो धीरे धीरे एग शेल अपने आप थिन होने लगता है, वीक होने लगता है. व्हाई? बिकॉज अंदर जो ग्रोइंग एम्ब्रियो था वो शेल में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने बोन्स के लिए. यूजिंग स्पेशल मसल्स. उसके अलावा क्या होता है, इनकी नेक में, इनके नेक के बैक में स्पेशल मसल्स होती हैं जिसका यूज करके एम्ब्रियो एग टूथ को अगेंस्ट द शेल रब करता है. एंड कंटिन्यूड रबिंग ऑन वन स्पॉट. एंड जब एक ही पर्टिकुलर स्पॉट पे कंटिन्यूअसली रबिंग होती है तो वहां पे उस शेल में एक छोटा सा होल हो जाता है. विद टाइम एंड मोर एफर्ट, फिर टाइम एंड और ज्यादा एफर्ट के साथ साथ ये होल और ज्यादा बिग होने लगता है. एंड व्हेन द कट इज कंप्लीट, जैसे ही वो कट कंप्लीट हो जाएगा, जो हैचिंग बर्ड थी अंदर वो उस एग से बाहर आ जाएगी. समवॉट लाइक दिस इज द बर्ड कमिंग आउट ऑफ एन एग. ऑलराइट, चलो. Then next we have to talk about fishes. So most of the fishes lay thousands of small eggs in water. ज़्यादातर fishes जो है पानी के अंदर thousands of eggs को lay करती हैं. The eggs of some fishes remain suspended in open water. कुछ fishes के जो eggs हैं वो water में ही suspended रहते हैं. Many freshwater fishes, बहुत सारी freshwater fishes हैं जो कि eggs lay करती हैं on the bottom और among the plants. द मास ऑफ एग प्रोड्यूस. उसके बाद जब एक एग्स का मास जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड स्पॉन.
द एग्स ऑफ फिश डू नॉट हैव शेल्स। फिशेस के जो एग्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें शेल्स नहीं होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अ काइंड ऑफ जेली, एक्चुअल में फिशेस के एग्स को एक जेली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उनके एग्स को कवर करता है एंड ऑल्सो उन्हें वाटर से प्रोटेक्ट करता है। आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, एक्चुअल में एज आई टोल्ड यू फिशेस जो है थाउजेंड ऑफ स्मॉल एग्स ले करती है एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो उतने लार्ज नंबर ऑफ एग में से कुछ फ्यू हंड्रेड एग्स ही होते हैं जो कि यंग फिशेस में डेवलप हो पाते हैं। वाई? बिकॉज मेनी ऑफ द एग्स एंड बेबी फिशेज आर ईटन बाय द अदर फिश। बहुत सारे ऐसे एग्स या बेबी फिशेज होती हैं जिनको बड़ी फिशेज जो हैं वो खा जाती हैं, एंड कुछ फ्यू ही होती हैं जो एक एडल्ट फिश तक ग्रो कर पाती हैं और डेवलप हो पाती हैं। ऑलराइट, देन अमेजिंग फैक्ट, व्हाट इज इट? डॉल्फिन एंड व्हेल रिजेंबल फिश एंड लिव इन वाटर। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स फिशेस की तरह दिखती हैं, पानी के अंदर भी रहती हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट फिश। ऑलराइट, दे आर एक्वेटिक मैमल्स। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स क्या है? एक्वेटिक मैमल्स हैं। ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं एंड उन्हें अपने मिल्क पे फीड करते हैं। दे डू नॉट ले एग्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव रेप्टाइल्स. So some reptiles give birth to their young ones while some other lay egg. कुछ रेप्टाइल अपने यंग ones को बर्थ देते हैं एंड कुछ लेस एग। मोस्ट रेप्टाइल, ज्यादातर जो रेप्टाइल्स है लाइक स्नेक, टर्टल, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, व्हाट दे डू? दे ले एग्स। फिर कुछ स्नेक्स हैं लाइक पाइथन, ब्रैट स्नेक, एंड कुछ लिजर्ड्स हैं लाइक वाटर ड्रैगन, दे ऑल्सो ले एग्स ओनली। शेल्स ऑफ एग्स, एग्स के जो शेल्स होते हैं वो एक थिक लेदर की तरह होते हैं जो उनके एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। दीज एग्स डू नॉट ब्रेक व्हेन लेड ऑन द ग्राउंड। जब इन एग्स को ग्राउंड पे ले किया जाता है तब ये ब्रेक नहीं होते। इन एग्स को जो वार्मनेस मिलती है वो मिलती है बाय द हीट ऑफ द सन। देन कुछ लिजर्ड्स हैं लाइक सोलोमन आइलैंड skink, snake like boas and vipers. What they do? They bear their young ones. Alright, you can see ये एक adult snake है giving birth to a baby snake, जो कि एक baby snake को birth दे रही है। And यहाँ पे baby snake है which are coming out of an egg. Alright. Then we have amphibians also. What are amphibians? As we have discussed in our previous chapter also, the animals which live both on land and on water. वो animals जो water and land दोनों पे ही survive कर सकते हैं, they are called amphibians. So if we take the example, frog is an amphibian. And frog क्या करता है? Frog अपने eggs को lay करता है in the safe places in water. The eggs of frog. Frog के भी eggs किससे covered होते हैं? Jelly से covered होते हैं. Just like fishes, fishes की तरह frogs भी क्या करते हैं? एक eggs के spawn को क्या करते हैं? Produce करते हैं. ठीक है ना, कि बहुत सारे eggs को produce करते हैं एक particular time पे. The eggs hatch into tadpoles. उसके बाद उन eggs में से क्या tadpoles hatch होके बाहर निकलते हैं जो कि छोटी छोटी fishes की तरह दिखते हैं initial stages में. After a few days, कुछ दिनों बाद tadpoles develop legs. Tadpoles में legs आने शुरू हो जाते हैं, arms आने शुरू हो जाते हैं, and then they grow into young frogs. Alright, having tails. फिर धीरे धीरे वो young frogs में grow करने लगते हैं जिनके पास tails भी होती हैं. But now they look same as their parents. लेकिन यहाँ पे वो थोड़े थोड़े अपने parents की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं. And after some days, फिर कुछ दिनों बाद the tail disappear. वो tail पूरी तरीके से disappear हो जाती है and एक adult frog का formation होता है. Alright. Then we have insects. So all insects reproduce by laying eggs. सारे insects भी eggs ले करके ही reproduce करते हैं. Some insects like grasshopper and cockroaches pass through 3 stages. कुछ insects ऐसे हैं जैसे कि grasshopper, cockroaches, ये कितनी 3 stages के through pass करते हैं. एंड जो 3 स्टेजेस इनकी लाइफ साइकिल की होती हैं, और इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की जो 3 स्टेजेस है लाइफ साइकिल की, दैट इज द एग, nymph एंड एडल्ट. ऑलराइट, अगेन एन अमेजिंग फैक्ट, व्हाट इज इट? दैट अ फीमेल जाइंट टोड कैन प्रोड्यूस अबाउट 35,000 एग्स एट अ टाइम. एक फीमेल जाइंट टोड जो है अराउंड 35,000 एग्स प्रोड्यूस करता है एक पर्टिकुलर टाइम पे. यू कैन सी सम इंसेक्ट्स, अब कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स लाइक हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, जो अपनी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं. द यंग वन विच हैचेस फ्रॉम द एग इज नॉट द सिमिलर एज द एडल्ट. ठीक है, एग से जो यंग वन हैच होके बाहर निकलते हैं वो अपने एडल्ट पेरेंट की तरह नहीं दिखते. इट लुक्स लाइक अ वर्म, ये एक वर्म की तरह दिखते हैं, आने ने कहा जाता है लार्वा.
देन द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लार्वा को आप कैटरपिलर बोलते हो. इट फीड्स ऑन लीव्स, ये लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद वो खुद को कवर कर लेते हैं इन अ कुकून, एंड नाउ इट इज कॉल्ड, एंड इसके बाद अब इन्हें क्या कहा जाता है, प्यूपा. फाइनली इसके बाद कुकून क्या होता है, बर्स्ट होता है, एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम्स आउट. ऑलराइट, यू कैन सी ओवर हियर, ये एग्स थे, एक ये जो है लाइफ साइकिल है कॉकरोच का. एग्स थे, एग्स में से 6 to 7 वीक्स के बाद निम्फ बाहर निकलेंगे, एंड निम्फ जो है 9 to 13 मंथ्स के अंदर एक एडल्ट कॉकरोच में डेवलप हो जाएंगे. सो 3 स्टेजेस में एक कॉकरोच का जो है लाइफ साइकिल चलता है, एंड दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई और अ हाउस फ्लाई. तो सबसे पहले एग्स हैं, एग में से कैटरपिलर बाहर आते हैं, कैटरपिलर फिर प्यूपा यानी कि कोकून में खुद को कवर कर लेता है, और उसके बाद वहां से एक एडल्ट बटरफ्लाई बाहर आती है. सो दैट मीन्स जो बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई का लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है. ऑलराइट, अगेन एन अमेजिंग फैक्ट दैट देयर इज वन सिंगल क्वीन इन द बी हाइव. बी हाइव में स्टूडेंट्स एक सिंगल क्वीन होती है. शी लेज एग, वो एग्स ले करेगी, ठीक है, टू ब्रिंग टू लाइफ द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बीज, सो दैट जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बीज है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करे. Now let us recall the chapter. So the process by which animal give birth to the young ones of their own kind is called reproduction. ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक एनिमल अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, which looks like them only, the process is called reproduction. Secondly, some animals, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, and the other lays eggs. Thirdly, लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल, एनिमल्स की जो लाइफ साइकिल्स होती है एक्चुअल में वो एनिमल्स विच लेज एग. ठीक है, सो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, दे हैव डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल. राइट, सम एनिमल्स टेक केयर ऑफ द यंग वंस, कुछ एनिमल्स अपने यंग वंस की केयर करते हैं, while others do not. And the last, that the frogs lays their eggs in water at safe places. Frogs जो है अपने eggs को water के अंदर ही lay करते हैं, but that place should be safe. Alright, so the chapter is completed. This was all about the reproduction process which we have discussed, especially in the egg laying animals. So let's meet very soon, and I'll keep going well, and thanks to everyone.